انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ جو چیز نیک نیتی سے کی جاتی ہے اس کا اجر ملتا ہے، آپ کو ملے گا، ضرور ملے گا، دیر سویر بھی ہو سکتی ہے لیکن ملتا ہے۔ جو نوٹ کرنے والا ہوتا ہے وہ نوٹ بھی کرتا ہے، اور جو حساب چکانے والا ہوتا ہے وہ حساب بھی چکاتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو اس کی ذات ہے وہ نیتوں کے حال جانتی ہے، اور آپ کے جذبے کی قدر ہم سب کرتے ہیں۔ حسینیہ کانفرنس کی ابھی مفتی صاحب نے اپنے کلمات میں کچھ باتیں کی، اور میں سن بھی رہا تھا، غور بھی کر رہا تھا، اور کچھ ایسی باتیں تھیں جن سے کہ آپ تھوڑے سے مضطرب دکھائی دیے۔ بنیادی مقصد ایسی نشست منعقد کرنے کا اور ایسی کانفرنس کی بنیاد رکھنے کا یہی تھا کہ مختلف الخیال زعماء کو یکجا کیا جائے، اور اس سے قومی یکجہتی کا پیغام اجاگر کیا جائے۔ سپتین رضا فرما رہے تھے کہ وزارت مذہبی امور اپنا کردار ادا کرتی ہے، یقیناً کرتی ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن اس پیغام کو عوامی پذیرائی ملتی ہے جب سول سوسائٹی اس پیغام کو اون کرتی ہے۔ اور یہ جو محفل ہے یہ سول سوسائٹی کی محفل ہے، اس میں سرکاری رنگ نہیں ہے، اس میں ایک والنٹری ایکٹیویٹی ہے، اور یہ شہر کے ہمارے بڑوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کا جذبہ جو تھا وہ قابل دید تھا اور ہے۔ آپ اس جذبے کا مظاہرہ کر رہے ہیں جب آپ یہاں تشریف لاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ جو پیغام ہے یگانگت کا، یکجہتی کا، اخوت کا، بھائی چارے کا، برداشت کا، وہ پیغام آگے جاتا ہے۔ وہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور اس پیغام کو آگے پہنچانا۔ اب جو امام عالی مقام کی جو قربانی ہے، اور اس قربانی سے دین اسلام کی جو بہت سی شخصیات نے اس دین کے فروغ میں اپنا کردار ادا کیا ہے، پر امام عالی مقام کی شہادت نے اس کو ایک نیا رنگ دیا ہے، اور اس کا اعتراف ساری دنیا کرتی ہے، بالکل کرتی ہے، اور ہر مکتب فکر کرتا ہے۔ اور آپ نے خود ہی اپنے خطاب میں فرمایا کہ الحمدللہ ویسے تو ساری دنیا میں، لیکن بالخصوص ملتان میں جو اہل سنت ہے ہمارا طبقہ، وہ بالخصوص اس کا اعتراف کرتا ہے، اور آپ نے خود فرمایا کہ اکثر جو مجالس اور جلوس ہیں وہ اہل سنت سے منسلک ہیں۔ تو یہ بہت بڑی اس شہر کی وفاداری کا عملی ثبوت ہے کہ سبیل کی محفلیں سبیل لگتی ہے، دودھ کی، پانی کی، اور لوگ نیاز و لنگر تقسیم کرتے ہیں، اور اس میں ہر طبقہ کرتا ہے، صرف اہل تشیع نہیں، ہر طبقہ کرتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق سب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ لیکن آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہم اور ہمارا یہ خطہ ایک خاص جسے کہتے ہیں نا، ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ آپ مفتی صاحب نے حوالہ دیا کچھ یوٹیوبس کا، کہ ان یوٹیوبس پہ ایسا مواد چلایا جاتا ہے جس سے کہ لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ یقیناً سوچنے کی بات یہ ہے ایسا کون کرتا ہے، اور کیوں کرتا ہے، اور کیوں کرتا ہے، اور خاص طور پہ
चुने हुए दिनों में क्यों करता है? ये है जो आपको समझने की जरूरत है। मेरे साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, एक 5th जनरेशन वॉरफेयर का नाम आपने सुना होगा, जिसको हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं। उस वॉरफेयर में अंदाज बदले हैं। वायलेंस की जगह एक इंटरनल डिसऑर्डर पैदा करने की कोशिश की जाती है, गलतफहमियों को जन्म देकर, तफरीक पैदा करके, दिल आज़ारी करके कौम को तकसीम करने की एक कोशिश, एक मुनज़्ज़म कोशिश जारी है। और आपने देखा कि पिछले दिनों में हमने उसको बेनकाब करने की कोशिश भी की, और आपके इल्म में होगा कि हमने उन तकरीबन 750 वेबसाइट्स को बेनकाब किया जो डिसइंफॉर्मेशन फैला रही हैं, और उनके ताने बाने उन ममालिक के साथ और उन एजेंसियों के साथ जुड़े हुए हैं जो पाकिस्तान में दाखिली इंतशार को हवा देना चाहती हैं, जो आपको अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करना चाहती हैं। उनका अपना एजेंडा है। उस एजेंडे को समझने की ज़रूरत है, और न सिर्फ उसको समझने की ज़रूरत है, उसको शिकस्त देने की ज़रूरत है। और उसको शिकस्त देने का सबसे आला जो तरीका है वो ये है जो आज आपने महफिल सजाई है। ये उसका अमली उसको शिकस्त देने का आपने शाइस्ता अंदाज में बंदोबस्त किया है जो काबिल तारीफ है। वो आपको फोड़ना चाहते हैं, आपने जोड़ दिया सबको। यही आपकी कामयाबी है, और यही तरीका है उस 5th जनरेशन वॉरफेयर को शिकस्त देने का। ये सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी चीज़ें लगाई जाती हैं, बहुत सी पोस्ट लगाई जाती हैं दिल आज़ारी के लिए, और बहुत सी चीज़ें बग़ैर तस्दीक किए कि उनमें हकीकत कितनी है, सच कितना है, झूठ कितना है, वो आगे पास ऑन कर दी जाती हैं। फिर आपके इल्म में है कि फ़ेक न्यूज़ जो है वो भी एक हकीकत है, और फेक न्यूज़ जो है उसको जन्म दे दिया गया है, और वो फेक न्यूज़ भी इस वॉरफेयर का हिस्सा है। ये उस हिकमत अमली का हिस्सा है जिसको समझने की ज़रूरत है। इसलिए हमें पहली चीज़ तो ये है कि कोई ख़बर आती है मनफी जिससे आपको तकलीफ़ होती है, पहले ज़रा आप उस बात की तहकीक कीजिए। फिलफौर जज्बात में आना मुनासिब नहीं है। पहले उसकी तह तक जाइए कि जन्म कहाँ से ले रही है, इसके पीछे कौन है, इसके मकासद क्या हैं, और फिर आप अपनी एक बेहतर मनसूबाबंदी कर सकते हैं कि हमने इसका तदारुक कैसे करना है। आज जिन चीज़ों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जब इस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी गई थी तो तब ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। उस ज़माने में ये इंटरनेट भी नहीं था, उस ज़माने में ये सोशल मीडिया का इतना प्रचार भी नहीं था, उस ज़माने में ये 5th जनरेशन वॉरफेयर नहीं हुआ करती थी। तो आज आइए मिल के खराज तहसीन पेश करें उन अपने बड़ों को जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी। उनकी ज़रा दूरबीन निगाह तो देखिए। जो हम आज जिसका जिक्र कर रहे हैं वो उसको कल उसके बारे में सोच रहे थे और उसकी पेशबंदी कर रहे थे, उसकी मनसूबाबंदी करके उन्होंने इस हुसैनिया कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी। बुनियाद का मकसद था, और आज जैसे जैसे ये चीज़ें सामने आ रही हैं हमें उसकी अहमियत और उजागर होती चली जा रही है। तो मैं सिर्फ आज इस हुसैनिया कॉन्फ्रेंस की अहमियत और ज़रूरत पर जोर देना चाहता हूँ कि इसकी ज़रूरत थी, कल थी, आज उससे ज़्यादा है। कल थी, आज उससे ज़्यादा है। और इसकी खुशाइंद बात तो ये है कि इसमें
सरकार का नहीं, एक उन्स का आंसर है। लोग अपना वक्त, अपना मोहब्बत, अपना इजहार खुद करने आते हैं, और ये मुल्तान के शहरी, मुल्तान के दानिश्वर, मुल्तान के उलमा, मुल्तान के मशाइख इस नशिस्त को ओनरशिप देते हैं, और ओनरशिप उन्होंने दी है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपकी मोहब्बतों का, आपकी तवज्जो का, और आपके मुस्बत किरदार का जो अब आप अदा करते आए हैं और कर रहे हैं। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आज, कल और जितने दिन बाकी हैं वो खैर खूबी इख्तिताम पजीर हों, बाहमी एहतराम और वज़ादारी का जो मुज़ाहरा है वो इस अज़ादारी में मुल्तान की वज़ादारी का बहुत अमल दखल है, और अपनी रिवायती वज़ादारी से आपने इस अज़ादारी को फ़रोग़ देना है। यही है पैगाम, यही है पैगाम आज की इस 43वीं हुसैनिया कॉन्फ्रेंस का। मैं आपको खराजे तहसीन पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इसको मुनक़िद किया, क्योंकि मुमताज़ाबाद भी हाज़िरी देनी है, मुझे वहाँ पहुँचना है और वक्त हो गया है, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।